sanctions committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose for it is to declare the TRF as a globally. तो बड़ी खबर इस वक्त की, तनाव के बीच ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई है, ये साफ कर दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए। ट्रंप के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। तनाव के बीच ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई। तो जो ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे, विदेश मंत्रालय ने उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब बात की जाएगी तो पीओके पर की जाएगी। पाकिस्तान को आतंकवाद का खात्मा करना ही होगा, यह साफ कर दिया गया एक बार फिर से। सिंधु जल संधि सस्पेंड रखा गया है, उसको यह साफ कर दिया गया। ट्रंप के दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। तनाव के बीच ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया था कि हमने दोनों देशों से कहा है कि युद्ध को खत्म करें और दोनों के साथ व्यापार करेंगे और बहुत अच्छा व्यापार करेंगे, जिसके बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए राजी हो गए। लेकिन इस बीच विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो तनाव के बीच ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। रणदीप जायसवाल ने यह साफ किया है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंधु जल संधि को सस्पेंड रखा गया है, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो जिस तरह से लगातार यही कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, और बाकायदा खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट कर यह बात कही गई थी कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। इस बीच ट्रंप का एक बार फिर से बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों से व्यापार की हमने बातचीत की है और ये कहा है कि व्यापार करेंगे आपके साथ और अच्छा व्यापार करेंगे, सीज फायर करे दोनों देश। Matter, you would have seen that TRF had taken responsibility, and then second time again, second day, twice they had taken responsibility, and thereafter possibly at the behest of their handlers they rolled it back. But TRF is one organization which is a front of the Lashkar-e-Taiba, and you would understand and perhaps be in the knowledge of it that we have been pursuing listing of TRF in the United Nations, by the United Nations Security Council, by the Sanctions Committee, UNSC 1267 Sanctions Committee. I am not privy to what was shared 2 hours back, but for sure we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. Mega on UNSC 1267 Sanctions Committee. Yes, over the last 2 years or so, 23, 24, we have been sharing information with the United Nations Security Council, the monitoring team of the Sanctions Committee, as to why the terrorist TRF, which is the front for Lashkar-e-Taiba, should be listed as a terrorist entity. We will be also, in few days' time, we will be sharing more details in this regard, and hopefully Security Council 1267 monitoring team will take strong note of what we present, what we file, and take due action against that is required. Rishabh, on your question regarding the interview that the Pak Foreign Minister gave. In the last week, as a result of Operation Sindoor, Pakistan has seen its terror centers in Bahawalpur, Murudke, Muzaffarabad, and other places destroyed. You have been informed of it in several of the briefings that we've had. Thereafter, its military capabilities were significantly degraded by us, and key air bases effectively put out of action. If the Pakistani FM wishes to project these as achievement, obviously he is welcome to do so. Where India is concerned, our stand was very clear and consistent from the start.
We would target terrorist infrastructure operating out of Pakistan. If the Pakistani military stayed out, there would be no problem. If they fired on us, we would respond suitably. Till the night of 9th May, Pakistan was threatening India with a massive assault. Once their attempt failed on 10th May morning, and they received a devastating Indian counter response, their tune changed. And their DGMO eventually reached out to us. I just referred to the timings, etc., as to when they reached out. In essence, India's position remained the same. Pakistan's position changed on 10th May morning after its air bases were effectively put out of action. All you have to do is to look at who called who to negotiate the terms of the cessation of firing. By the way, we are living in a day and age where you have satellite pictures available commercially. I urge you to look at the satellite pictures of the sites which Pakistan says or claims to have attacked in India. Contrast it with the sites and places which we successfully targeted and destroyed. That will give you a clear answer. Claiming victory is an old habit. 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा. तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है. परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ. तो बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि हमने व्यापार को लेकर बात की है दोनों देशों से और तभी वो सीज फायर के लिए राजी हुए हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने आज इससे साफ इनकार कर दिया. आपको दिखाते हैं कि पहले क्या कहा ट्रंप ने और क्या कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Kandanmi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. तो पहले अमेरिका की तरफ से दावा किया गया जिसे आज सिरे से खारिज कर दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से. सुना आपने कि ट्रंप ने किस तरह से बताया था कि ट्रेड को लेकर बात हुई है दोनों देशों से और सीज फायर के लिए वो राजी हो गए हैं इसी पर. लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि तनाव के बीच किसी तरह के ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है. यानी ट्रंप के दावे को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है. तनाव के बीच ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, ये क्लियर किया गया. एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं ट्रंप का दावा और विदेश मंत्रालय का जवाब. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. We had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May
till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कमलेश सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, जिस तरह से ट्रंप ने दावा किया था कि ट्रेड को लेकर दोनों देशों से बात हुई है और कहा है हमने व्यापार करेंगे उनके साथ, तब सीज फायर के लिए राजी हुई है, लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। उसे कैसे देखा जाए? देखिए, उससे लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप कई बार अपने बयान को लेकर के मोड़ चुके हैं, कई बार अपने बयान से बदल चुके हैं और लगातार 3 दिनों में 3 उनका एक्ट पर स्टेटमेंट आया और आज जो उन्होंने कहा ट्रेड को लेकर के उसे विदेश मंत्रालय ने सीधे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय का तो यहाँ तक कहना है कि सैन्य अभियान रोकने पर 7 से 10 मई के बीच भारत और अमेरिकी समकक्षों की बातचीत हुई, ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। साफ है कि जो ट्रंप कह रहे हैं बिल्कुल वो बड़बोलापन है और उनके बयान को सीधे से विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। ऐसे में अब ट्रंप को सोचना पड़ेगा कि बिना सोचे समझे हर बार कुछ बोल देते, स्टेटमेंट दे देते हैं, खासकर पॉलिसी डिसीजन को लेकर के, और फिर वो अपना बयान बदलते हैं तो उससे वो हल्का होते हैं विदेश में। और विदेश मंत्रालय का खंडन, सबसे बड़ा खंडन यही है कि ऐसा कोई बातचीत हुई नहीं। ऐसे में अब निश्चित रूप से ट्रंप अब झूठे साबित हो गए हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप अब कौन सा नया पैतरा तैयार करते हैं, कौन सा नया पैतरा देते, क्योंकि ट्रंप जो है हर रोज नए पैतरे लेने के लिए विख्यात है। क्या बोलते हैं, किस पे बोलेंगे, कि उनको खुद ही याद नहीं रहता है। और इस बयान को भी कम से कम इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन कर दिया है। जी, जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ मना कर दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया और लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे ट्रंप को लेकर कि ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया, और जिस तरह से ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक दावे किए जा रहे थे, तो क्या विपक्ष को भी इसके जरिए जवाब देने की कोशिश सरकार की? बिल्कुल, अब विपक्ष को कम से कम चुप होना चाहिए, खासकर तब जब विदेश मंत्रालय इस बात का खंडन कर दिया है तो विपक्ष को अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए, ना कि ट्रंप के बयान पर। ऐसी स्थिति में ट्रंप का वो बयान भी, मध्यस्थता वाली बयान भी, वो भी झूठी साबित होगी। जब प्राइम मिनिस्टर ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने सिर्फ सेना के पराक्रम को सलाम किया था, किसी देश की बात ही नहीं कही थी। और अभी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जो यही था, मैं संजय बोल रहा। सबसे बड़ा सवाल यही था कि कांग्रेस को भी बड़ा मुद्दा मिल गया था कि प्रधानमंत्री 2 बार संबोधित कर चुके हैं और ट्रंप के मामले में कुछ बोला नहीं, लेकिन विदेश मंत्रालय का मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सीधा और सटीक ये संदेश है कि भाई इस पूरे मामले पर जो है कि स्वीकार नहीं है, जो बातें उन्होंने कही है वो डाइजेस्टिव नहीं है। बिल्कुल। अब ये देखिए, विदेश मंत्रालय पर बयान के तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि 7 से 10 मई के बीच कोई बातचीत हुई नहीं संदर्भ में। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है आज विदेश मंत्रालय ने खोल कर कही है, उसमें ये कहा है कि जो मध्यस्थता की बातें कही जा रही है अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति ने कही थी, उस पर भी खुल के उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुद विदेशी जो उच्चायुक्त थे, पाकिस्तान के उच्चायुक्त, उनकी ओर से रिक्वेस्ट आया था जब DGMO लेवल की बातचीत हुई थी। यानी ये भी साफ हो गया कि ये जो बातचीत की पेशकश है वो खुद पाकिस्तान के उच्चायुक्त की ओर से आया था। उसके बाद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो पाकिस्तान के हैं उनकी ओर से इनिशिएटिव किया गया, उनकी ओर से पहला कॉल आया, जबकि तब भारत के DGMO ने बात की और 3:30 बजे ये बात मुकम्मल हुई। ये बात भी, दोनों बातें झूठी साबित हो गई। अब ऐसे को एक बड़ा मजबूत संदेश है। विदेश मंत्रालय ये कहता है कि पाकिस्तान के DGMO की तरफ से बातचीत की पहल की जाती है, खुद फोन आता है तब जब वहां के एयरबेस को भारतीय वायुसेना उड़ा देती है। यानी पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका था कि इसके बाद उसके लिए उसके पास ऑप्शन दूसरा बचा नहीं है, या तो सरेंडर जैसा बिहेव करे या तो बातचीत के लिए खुद से इनिशिएट कर ले। जी बिल्कुल, ही कहा हमने। ये बात जो विदेश मंत्रालय कह रहा है, ये बातें सेना ने 2 बार पहले भी कही है और शायद विदेश मंत्रालय आज कैटेगोरिकली साफ कहा है कि जो सैन्य अड्डे तबाह किए गए पाकिस्तान घुटनों पे आया, तब जाके पाकिस्तान को उच्चायुक्त ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, उसके बाद ये DGMO लेवल की बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बात कहा जा रहा था कि इनिशिएटिव किसने की, वो बात भी कब खत्म हो गई कि इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से आया और मध्यस्थता की जो बात कही गई, मध्यस्थता की बात भी खारिज हो गई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ट्रेड की जो बात की डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी खारिज हो गई। यानी तीनों बातें जो झूठी निकली और ट्रंप बेनकाब हो गए। उसके साथ साथ विपक्ष भी एक हद तक कर सकते हैं, जिससे विपक्ष ने विदेशी मेहमानों पर भी विश्वास किया, वो बेनकाब होता हुआ दिख रहा है कम से कम इस मुद्दे को लेकर।
नहीं, एक गंभीर अभी मसला है, ठीक है, विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया उसको, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट और वहां के जो एक तरह से कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर का ट्वीट था, उसमें जिक्र था कि दोनों देशों के इन नेताओं, इन ऑफिशियल से बातचीत हुई है। अगर मीडिएशन अमेरिका की नहीं थी तो अमेरिका को क्या हक था और किस अधिकार पर अमेरिका ने यह बात और श्रेय लेने की कोशिश की? ये तो सवाल बड़ा गंभीर है। देखिए, आप याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आने के साथ ही उन्होंने कहा था कि जो युद्ध है रुकवा देंगे, इजराइल हमास की युद्ध रुकवा देंगे। उन्होंने कहा था कि शांति स्थापित कर देंगे, युद्ध विराम ला देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद खत्म कर देंगे, दोनों को एक टेबल पर ला देंगे। वो तो हुआ नहीं अभी तक। तो बड़ी बड़ी बातें करते। उसके बाद आपको यह तीसरी सबसे बड़ी बात, वो ट्रेड वार उन्होंने के लिए 145% का ट्रेड आप टैरिफ लगा दिया चाइना पे। उसके बाद ये खबर आई कल जो है जो टैरिफ है घट करके 20% के आसपास हो गए। तो इंडिया के खिलाफ 26% का टैरिफ लगा घट के वो ट्रेड टॉक्स अभी चल ही रहा है। तो क्या करते हैं ट्रंप, शायद उनको ही भरोसा नहीं होता। बाद में ये बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा कमलेश, आपको रोकना चाहेंगे, एक बयान सुना देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछले दिनों उन्होंने कहा था, उसके बाद भारत की तरफ से क्या जवाब था, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। कमलेश, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट लग रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर जानबूझकर घुसने का है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से और इसके पहले प्रधानमंत्री की तरफ से यह साफ संदेश है कि ये दोनों देशों का आपसी मसला है और ये दोनों देश ही द्विपक्षीय तरीके से सुलझाएंगे। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग लाइन ये है कि पाकिस्तान पीओके खाली करे। ये साफ तौर पर संदेश है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं होगा। अगर बातचीत का जिक्र आगे बढ़ता है, पीओके पर होगा, और पीएम ने तो पहले भी कहा कि टेररिज्म इसमें शामिल है। देखिए, दरअसल ट्रंप चौधराहट करना चाहते हैं, और उनकी जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उनके पहले उन्हें कई बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसके बाद सत्ता में आए थे और बाइडेन सरकार को वापस करके वो उनकी सरकार बनी। तो अपने वादे के अनुसार कई उन्हें जुलूल काम करते हैं, और जो वादे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि कश्मीर मुद्दे को जो आरा गलाफा है, ऐसी इसलिए विदेश मंत्रालय का जवाब, करारा जवाब उनके लिए है। और खुद प्रधानमंत्री ने कल कुछ कहा था कि पीओके की बात जब होगी तो
कश्मीर की अगर बात होगी, पीओके की बात होगी, पीओके को वापस लेने की बात होगी। आज भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके को वापस करो, पाकिस्तान से साफ मांगे कि पीओके वापस हो तो ही बातचीत संभव है। तो प्रधानमंत्री ने कल एजेंडा तो सेट कर दिया था, अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद खत्म करने की बात होगी, अगर बात जी। होगी तो पीओके वापस करने की बात होगी। ऐसे में ट्रम्प का जो ये जो सगुफा था, ये कहीं ना कहीं पहले ही खत्म हो गया था और विदेश मंत्रालय ने बची कुछ ताक आज खत्म कर दी। नहीं, ये जो लाइन है कि पीओके खाली करो, तो बहुत सख्त लाइन है। ये पाकिस्तान को कैसे आखिर उसके लिए क्या एक तरह से संदेश है? देखिए, बहुत ये अब निश्चित रूप से ये डिप्लोमेसी इस तरह की भाषा नहीं चलती, डिप्लोमेसी लाग लपेट कर भाषा चलती है। लेकिन आज जो विदेश मंत्रालय की ओर से जो रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है कि पीओके खाली करो, बहुत बड़ा लैंग्वेज है और ऐसी स्थिति में ये बदला हुआ भारत का रुख कर सकते हैं। आपको ये प्रधानमंत्री जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किया है, उसके बाद विदेश मंत्रालय भी कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है, कम से कम उसी बात का ही संकेत है। बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई ये जो तरीका है वो बहुत बदल चुका है इस बार युद्ध के बाद, और ऐसे में अगर ये कही जाती है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर पीओके खाली करे, ये सही बात है कि